اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس کے اختتام پر اس سورت کا ترجمہ اور مناسب تشریح بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اور آج جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کے اندر حیات بعد الموت اور لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دعوت کے جواب میں کس طرح بیہیو کرتے تھے، اس کو ایک تمثیلی انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، بعض ایسی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جو اس کے اندر کوئی ریزن نہیں ہوتا تھا، کوئی کامن سینس نہیں ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ اشارے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی توفیق جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہر ذی روح، ہر جاندار جو ہے وہ رہین ہے۔ رہن ہم اردو میں بھی جانتے ہیں کہ کوئی چیز کسی چیز کے مقابلے میں گروی رکھی جاتی ہے، اور یہ پرانا طریقہ ہے کہ آپ نے کسی سے اگر قرض لیا ہے تو آپ اس قرض کو لیتے ہیں اور کوئی چیز اس کے لیے آپ گروی رکھواتے ہیں۔ اور آج کل کا موجودہ جو دور ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو مورگیج کہتے ہیں، کہ مکان کے اوپر قرض لیتے ہیں اور مکان ان کے پاس گروی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا قرض پورا دے دیں گے تو پھر آپ کو مکان کے ڈاکیومنٹس، اونرشپ جو ہے وہ مل جائیں گے، آپ حقیقی اونر آپ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ہر جاندار جو ہے وہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ وہ گروی ہوگا۔ ہر جاندار کس بما کا سبب، جو کچھ انہوں نے کمایا ہو، اچھا کمایا ہوگا، برا کمایا ہوگا، اسی کے عوض میں، اسی کے ریٹرن میں ان کی پھر جو ہے وہ خلاصی ہوگی، ورنہ یہ ہر نفس کی جو ہے وہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو
इंसान की बॉडी का हर ऑर्गन जो है उसके ऊपर सदका करना वाजिब होता है बतौर शुक्राने के। कि दोबारा सुबह की है तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, जुबान दी है, और दीगर आर्गन जो अता फरमाए हैं। तो अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कि नई सुबह के साथ एक आप नया कवर्नेंट लेके आते हैं अल्लाह की तरफ से, कि आपने अल्लाह ताला ने आपको ये अमानतन ये चीजें अता फरमाई है। तो आप जो है ये इसका शुक्रिया अदा करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान के हर बदन बदन के हर ऑर्गन पर जो है शुक्रिया अदा करना फर्ज होता है। और अगर आप तस्बीह करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, कोई अच्छी बात किसी को कहते हैं, किसी बुरी बात से मना करते हैं, तो वो भी इसमें काउंट होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर 2 रकत आप पढ़ लें चाश्त की, तो वो 2 रकत आपको उस जो आपकी जो अल्लाह की तरफ जो है आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह ने आपको एक अमानत अता फरमाई है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको खलासी जो है मिल जाती है कि आप फ्री हो जाते हैं जब आप चाश्त की 2 रकत पढ़ते हैं। तो चाश्त की 2 रकत कम अज कम 2 रकत है, मैक्सिमम 8 रकातें हैं। और ये इसकी बहुत ही बरकतें बयान की गई हैं। तो ये भी एक बात उसमें शामिल है कि इंसान की बॉडी जो है वो तमाम आज़ाद जो है वो गिरवी है अल्लाह ताला के पास, अनलेस के इंसान जो है वो शुक्रिया अदा करे। और ये वॉलेंट्री है, लेकिन बार कैफ अल्लाह तबारक व ताला जो है वो कबूल फरमाता है। इसके बाद एग्जम्पशन फरमाया, इल्ला अस्हाबल यमीन। हाँ, अस्हाब अल यमीन, यमीन कहते हैं राइट को, यानी द पीपल ऑफ द राइट हैंड, दाएं हाथ वाले, दाएं बाजू वाले इंसान। अब अस्हाब अल यमीन और अस्हाब शिमाल जो है वो कुरान की इस्तिलाह है कि वो लोग कि जिनको दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, वो लोग कि जिनको बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस सूरह मुदस्सर के अंदर अस्हाबुल यमीन यहाँ जो जिक्र हुआ है, ये अस्हाबुल यमीन कुरान पाक के दीगर मकामात से मुख्तलिफ है। यहाँ इसका मफहूम ये है, अस्हाबुल यमीन से हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से इसकी तफसीर मरवी है कि आपने फरमाया अस्हाबुल यमीन से यहाँ मुराद कौन है? यहाँ मुराद है मुसलमानों के नाबालिग बच्चे जो बुलूगत को पहुंचने से पहले अल्लाह ताला ने उनको मौत से दो चार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला वो जो मुसलमानों के बच्चे हैं जो बुलूगत से पहले पहुंच जाते फौत हो जाते हैं, उनके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, क्योंकि उसकी तवजीह ये की जाती है कि ये जो बच्चे हैं इनको नहीं मालूम था कि ये जो लोग दोजख में हैं वो क्यों हैं, तो इसलिए वो उनसे सवाल करेंगे। वैसे आपने इससे पहले भी जिक्र देखा होगा कि सूरह आराफ के अंदर जन्नत वाले जहन्नमियों से पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ जो वादा किया था वो हमने उसको पा लिया है, वो ठीक है, तो क्या तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने जो जिस बात का वादा किया था वो तुमने सही पा लिया है? तो वो भी जवाब में वो कहेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कुरान और हदीस के अंदर ये बात बताई गई है कि जन्नत और दोजख के दरमियान बहुत बड़ा फासला होगा, हजारों मीलों का फासला होगा। फिर ये कम्युनिकेशन किस तरह जो है मुमकिन हो सकेगी कि जन्नत वाले दोजखों से बात करेंगे और दोजख के लोग जो हैं वो जन्नतियों से बात कर सकेंगे? तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। इवन दो के दरमियान के अंदर जो है एक पर्दा होगा, एक दीवार होगी, कि जन्नत का जो आराम और सुकून है
وہ दोज़खियों को नहीं पहुंच सकेगा, और दोज़खियों की जो तकलीफ है और मुशक्कत है वो जन्नत वाले उससे जो है वो बचे रहेंगे। ये तो कैफियत होगी, लेकिन उनके दरमियान मुकालमा और गुफ्तगू जो है वो होगी। और असहाबुल यमीन से एक दूसरी तवजीह ये होती है कि ये बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो गए थे, ये बच्चे कहाँ पर होंगे फौत होने के बाद। तो आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की हदीस सुनी होगी कि सातवें आसमान पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, तो वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बाग के अंदर है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसपास जो है वो बच्चे जो हैं वो बैठे हैं। तो वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे वो हैं कि जो मुसलमानों के बच्चे हैं, और दुनिया में वो आलम बुलूगत को पहुंचने से पहले अल्लाह ताला ने उनके वालिदैन को उनकी रूह कब्ज करके उनसे महरूम किया था। तो उसका अजर उनको अल्लाह ताला ये अता फरमाएगा कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किफालत के अंदर होंगी। और आज मैं जब तैयारी कर रहा था, तो मेरी नज़र से एक बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो गुजरी, जो हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलहु अजरन व ज़ुखरन वजअलहु शाफ़ियन व मुशफ़्फ़ा। ये दुआ तो बड़ी पॉपुलर है, लेकिन ये दुआ इस आयत की तशरीह में मुझे मिली। वो क्या है कि अलहिक़हु बिसालिहि सलफ़िल मुस्लिमीन फी कफ़ालत इब्राहीम वजअलहु लना व लिअबवैहि सलफ़न। कि इनको या अल्लाह तबारक व तआला जब बच्चे को दफन करते वक्त आप दुआ करते हैं, तो उस दुआ के साथ ये अल्फाज भी शामिल करें कि अल्लाह इस मरहूम बच्चे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किफालत में आप ले जाए। इसका मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सातवें आसमान में जो अरवाह हैं उसके अंदर आ, उनकी कंपेनियनशिप जो है उनको दी जाए। तो इससे मुराद असहाबुल यमीन से ये है कि वो बच्चे, इस सूरह मुदस्सर में ये मुराद है कि वो बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किफालत में होंगे और जन्नत में होंगे, और वो सवाल करेंगे फी जन्नातिन जन्नतों के अंदर वो यतसाअलून, वो सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, जो लोग मुजरिम होंगे, यानी वो लोग कि जो जहन्नम के अंदर पहुंच चुके होंगे। तो ये असहाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले जो लोग हैं जन्नती, ये उनसे ये सवाल करेंगे मा सलककुम फी सफर। सलका यसलुकु, इसे मसलक भी कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि आपका मसलक क्या है, स्कूल ऑफ थॉट, और इसके माने होते हैं चलने के। लेकिन इसका जो सही माना है कि जब आप धागा सुई के अंदर परोते हैं, तो उससे मुराद ये होता है सलका। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप धागे को सुई के खाने के अंदर डालते हैं तो धागा बाहर नहीं आ सकता, इसी तरीके से मा सलककुम फी सकर, व्हाट इंसर्टेड यू इनटू द हेवन। यानी आप तो जहन्नम में जो जा चुके हो, किस तरह कि तुम्हारी यहाँ से एस्केप और रिहाई का कोई वे आउट है ही नहीं वैसे तुम। और उसके बाद यह है कि फिर वो जहन्नम की गहराई के अंदर, मजीद गहराई के अंदर उन वो चले जाएंगे, तो वो उनसे सवाल करेंगे और मुकालमा करेंगे। और जैसे कि अर्ज किया कि ये जन्नत एक तरफ है, दो दूसरी तरफ है, और उनके दरमियान में हजारों लाखों मीलों का फासला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये मुमकिन बना देगा कि जन्नती दोजखियों से और जो दोजखी जन्नतियों से गुफ्तगू जो है वो करेंगे। मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम की इस भट्टी में क्या चीज यहाँ पर लेके आई है कि तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो। तो वो जो जवाब देंगे उस वक्त, ये सिर्फ सूरह मुदस्सर के अंदर है, उनके जवाब के अंदर चार चीजें होंगी। चार चीजें होंगी जो वो इकरार करेंगे कि वो जहन्नमी क्यों बन गए हैं। कालू,
लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो ये कहेंगे कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज देखें, ये ईमान की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो लोग ईमान से महरूम हैं वो तो ज़ाहिर है नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उनका अंजाम भी बुरा हो सकता है। क्योंकि पहला सवाल अल्लाह तबारक व तआला जो बंदे से फरमाएंगे वो नमाज के बारे में, और नमाज के पूरे अकाउंट के बारे में हो। तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर नमाज का हिसाब करेंगे, और पहला जो उनका एक्सक्यूज होगा और अपना जुर्म का इजहार होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अफसोस की बात यह होती है कि हमारे कोई मुसलमान बहन और भाई जब किसी नमाज पढ़ने वाले को देखते हैं कि उनसे कोई ऐसी बातें सरजद हो रही है जो गुनाह है, जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो वो ये कह देते हैं कि नमाज पढ़ने का क्या फायदा। ये ऐसे जुमला नहीं कहना चाहिए। इंसान खता का पुतला है। जो नमाजी है वो भी इंसान है, उससे गुनाह हो सकता है उसकी नमाज उसके लिए शफात बन जाए, उसके गुनाहों को माफ करवा दे। हो सकता है बाद में उसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे और उसकी तौबा हो जाए, और जो गुनाह कर रहा है, तो ये बात नहीं कहनी चाहिए कि नमाज पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ गुनाह कर रहे हैं। ये गलत बात है, लेकिन हमें ये बात जो है वो नहीं कहनी चाहिए। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और दूसरी जो बड़ी मतलब है कि उनकी वजह थी जहन्नम में जाने की, कि हम लोग मिस्कीनों को, यतीमों को, नादारों को, जरूरतमंद को, जो हमारे इल्म में थे, जो हमारे पड़ोस में थे, हमारी जान में पहचान में थे, हम उनको खाना नहीं खिलाते थे। ये एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला का गुनाह हो गया, उसकी नमाज नहीं पढ़ना। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और फिर अल्लाह की जो मखलूक है, जो गरीब है, नादार है, उनको केयर नहीं करते थे। तो ये दूसरा बड़ा रीजन बन गया उनके जहन्नम में जाने का। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, ये आपने सुना होगा गौर खौज। ये उर्दू में गौर खौज कहते हैं इसलिए कि खौद कहते हैं गहराई में जाने को, गहराई में जाने को खौद कहते हैं, खा वाव और दाल। लेकिन अरबी में खौद के माने ये भी होते हैं कि इंसान हक के इनकार के अंदर बहुत गहरी हद तक चला जाए। यानी खुद तो उसने हक का इनकार नहीं किया, लेकिन जो हक का इनकार कर रहे थे उनके अंदर वो शामिल हो गया, और उसके अंदर उसकी डेप्थ के अंदर जो है वो चला गया। तो इसकी मिसालें आजकल और ख़ास तौर पर आपको सोशल मीडिया पर बहुत मिलती हैं, और उसके अंदर ये है कि लोग जो हैं अफवाहें फैलाना, और ख़ास तौर पर ऐसी बातें फैलाना कि जो हक़ के मुनाफ़ी होती हैं और सच और सदाकत के खिलाफ होती हैं, उसके अंदर बहुत डेप्थ के अंदर जाते हैं और उसके जवाब देते हैं, फिर उसको आगे फैलाते हैं। तो ये उसी में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हक है, उसका जो पैगाम है, उसकी मुखालफत में वो बहुत गहराई के अंदर जो है वो जाते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और उसके साथ ये था कि हम क़यामत वाले दिन का भी इनकार करते थे। ये तमाम के तमाम चार जो जराइम हैं अपनी हैसियत में ये मेजर क्राइम्स हैं, ये कबायर में से है। लेकिन ये कि इन लोगों ने जो इकरार किया है, ये इन तमाम के मुर्तकिब हुए थे, और इसके अंदर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी भी है, और अल्लाह की जो मखलूक है आ, उसकी तौहीन भी है। और अल्लाह ताला ने जो रिस्क अता फरमाया है, चाहे वो मुसलमान को है, गैर मुसलमान को है, उसके अंदर भी एक आजमाइश है कि वो गरीबों का जो है वो ख्याल रखें। हत्ता अतानल यकीन,
हम इसी हाल में थे कि हमें मौत आ गई। अब यकीन का माना तो तर्जुमा तो यकीन होता है, लेकिन कुरान पाक में चंद एक मकामात पर यकीन का माना जो है वो मौत लिया है। इसलिए कि जब मौत उनको आ जाती है तो उनको यकीन हो जाता है कि ये दुनिया फानी थी। उनको यकीन हो जाता है कि हमारी जो जिंदगी थी वो फजूल की जिंदगी थी और हमने बेकार में उसको जाया किया। और उनको हकीकत जो है वो वाज़ह हो जाती है, जो कुरान और हदीस ने और अंबियाए कराम ने बताई होती बातें हैं, वो उनके लिए यकीन की कैफियत के अंदर जो है वो जाहिर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हत्ता अतान अल यकीन फरमाया कि उनको मौत आ गई, और मौत आने के बाद उनकी आंखें जो है वो खुल गई, लेकिन इट वाज टू लेट। तो ये वो उसका जो है वो जिक्र कर रहे हैं। और आपने सूरह आराफ के अंदर भी ये चीज देखी है कि वहाँ जो अ, जन्नती जो है वो दो जखियों से खिताब करेंगे, और इन बिटवीन वहां पर आराफ होगी। यानी आराफ जो है वो एक बैरियर होगा जो जन्नत और दोजख के दरमियान होगा। और आराफ के अंदर कौन लोग होंगे, इसकी मुख्तलिफ तावीलें हैं। एक तावील ये है कि इससे मुराद वो लोग हैं कि जिनके अमाल सालिहा और अमाल सैया बिल्कुल इक्वल हो गए, बराबर बराबर हैं। अब वो इस इंतजार में है कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फैसला करे। तो उसको उनको जन्नत में भी नहीं रखा गया, उनको जहन्नम में भी नहीं रखा गया, लेकिन उनको दरमियानी पोजीशन में रखा गया कि वो वेटिंग पीरियड में है कि उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला जो है करता है। एक तौजीह ये की गई है कि आराफ से मुराद जो है शुहदा है, कि जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक की नाफरमानी की, तो अभी वो भी इस हाल में दरमियान में लटकी हुई है। इसी तरीके से अगर किसी ने बड़े अच्छे नेक काम किए थे दुनिया में, लेकिन एक उन्होंने अपने वालिदैन को नाराज किया था, तो वो भी स्ट्रेट अवे जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो भी इंतजार करेंगे। फिर जब उन्होंने ये सारी चीजें देख ली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमा तनफअहुम शफाअतु शाफिईन। वहां पर ये तमाम चीजें देखने के बाद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए कि जिसकी सिफारिश हो जाए। हर इंसान उस वक्त किसी सिफारिशी की तलाश में होगा, और सिफारिश के बारे में कुरान पाक में हदीस में तफसील से बात बताई गई है। अगर आप मदीना शरीफ में जब जाते हैं, मस्जिद नबी की खास तौर पर जो पुरानी बिल्डिंग है, उस्मानियों ने जो बनाई थी, वहां पर लिखा है कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी जो शफात है मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उनको बचा लेगी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आप जाएं और जहन्नम में अगर किसी के दिल में रत्ती बराबर भी, एक दाने के बराबर भी ईमान था, तो आप उनको जहन्नम से निकाल दें। तो ये शफात उन लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो ईमान से महरूम थे। तो देखिए ईमान की कितनी बड़ी वैल्यू, ईमान का वजन कितना ज्यादा है, कि अगरचे इंसान गुनाहगार होगा और उसको अजाब होगा जहन्नम के अंदर, लेकिन अपने गुनाहों गुनाहों की सजा भुगतने के बाद वो क्या होगा, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात
अंबिया किराम की शफात, शुहदा की, सालिहीन की, मोमिनीन की, और उनके जो जानने वाले दोस्त अहबाब होंगे, वो जब देखेंगे कि उनके फला पड़ोसी, फला दोस्त जो हैं उनके साथ जन्नत में नहीं है, तो वो अल्लाह ताला से फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनको कहेगा कि जाओ देखो, तुम्हारे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो जहन्नम के अंदर हैं, लेकिन वो साहिब ईमान थे, उनको तुम लोग निकाल कर ले आओ। लेकिन ये इनके बारे में क्या फरमाया? फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, ऐसे लोग जो ईमान से महरूम थे, उनको किसी की शफात जो है वो फायदा नहीं पहुंचाएगी। अब उन लोगों की जो मौजूदा हालत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो ट्रीटमेंट है, उसका जिक्र किया जा रहा है। फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिदीन, ये इन लोगों को क्या हो गया है? यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातबीन हैं, और आप जिनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते हैं, इनको क्या हो गया है कि तज़किरा, तज़किरा मीन्स रिमाइंडर, और तज़किरा से यहाँ मुराद क्या है? कुरान। तज़किरा से यहाँ मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और दावत है, आपका वाज है। तो तज़किरा से ये क्यों मोरिदीन अपने आप को रूगर्दानी कर रहे हैं, क्यों उनसे रुख फेर रहे हैं, ये उन लोगों का जो है वो जिक्र हो रहा है। और इसके बारे में क्या फरमाया? कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन कस्वरा। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत एक तमसील, एक पैराबल, कंपैरिजन कुरान ने बयान की कि जो लोग के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से एराज करते हैं, उनकी मिसाल क्या है? उनकी मिसाल है जंगली गधों की तरह। हुमुरुन मुस्तनफिरा, मुस्तनफिरा मतलब है कि जो भाग रहे हैं वैसे, किससे? फर्रत मिन कस्वरा, शेर से वो भाग रहे हैं। शेर तो जंगल का बादशाह होता है, जिसे चाहे वो हड़प कर ले, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और बाज जानवर जो होते हैं, उसको देखकर, उसकी आवाज सुनकर, उसकी स्मेल जो है महसूस करके वो भाग जाते हैं कि कहीं शेर हमें शिकार न कर ले। और कस्वरा का एक तर्जुमा क्या किया गया है कि निशाना, जो शिकारी है उसका जो निशाना होता है, जब जानवर को पता चल जाए कि मैं इसकी जद में, टारगेट में आ गया हूं, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए वो भागता है। तो देखें, ये तशबीह दी गई है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बजाय इसके कि सुनकर लब्बैक कहें, आमन्ना और सद्दका कहें, वो उससे इस तरह फरार इख्तियार करते हैं कि जिस तरह जंगली गधे शेर को देखकर उनके ऊपर दहशत तारी हो जाती है और वहां से वो भागने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी तशबीह दी गई है। बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युअता सुहफम मुनश्शरा, बल्कि हालत तो ये है कि उनमें से हर एक ये चाहता है कि उसको एक ओपन बुक जो है वो दी जाए। अगर आपने सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा पढ़ी हो, तो उसके आखिरी रुकू के अंदर ये बात आती है कि जब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबात करते हैं कि आपके पास एक बाग होना चाहिए और ये तमाम चीजें होनी चाहिए, तो आखिर में उनका एक मुतालबा ये होता है कि हम आपको उस वक्त तक नहीं मानेंगे कि जब आसमान के ऊपर आप सीढ़ी लगा के न चढ़ जाए, और हम आपको सिर्फ सीढ़ी लगाना जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहां तक कि आप वहां से किताब जो है अपने साथ लेकर आए और वो किताब हमको दें कि हम उसको पढ़ सकें। वैसे यानी ये जो आप कह रहे हैं कि आपके पास किताब आई है, हमने तो नहीं देखा है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो इसी तरह ये जो आयत सूरह मुदस्सिर के अंदर है कि बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युता सुहफन मुनश्शरा,
کہ ابو جہل وغیرہ نے، دیگر لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، بڑا ہی مزہ کا خیز مطالبہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ کے فرشتوں سے کہیں کہ ہمارے فلاں فلاں لیڈر ہیں، ان کے نام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اوپن خط لکھے، بھیجیں کہ بھئی آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کریں، یہ میرے پیغمبر ہیں۔ اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات ناممکن نہیں تھی، لیکن ان کی ڈیمانڈز کی کوئی فائنل تو لسٹ نہیں تھی نا کہ اس کے بعد وہ کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو آزمائش رکھی ہے، امتحان جو رکھا ہے انسان کے لیے ایمان بالغیب کا، وہ تو ختم ہو جائے گا نا اگر ان کو تمام چیزیں دکھائی جائیں، لائف آفٹر ڈیتھ دی جائے، ملائکہ دکھا دی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ لیں، اور پھر یہ کہ بھی فرشتے آ کر ان کو کتابیں پڑھائیں اور سنائیں، تو اس کے بعد ان کے کچھ اور بھی مطالبات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو کہ انسان کی جو ہے وہ نیچر ہے۔ تو یہ ان کو کہتے تھے بل یریدو کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو ایک ایسی اسکرپچر، ایسی کتاب دی جائے جو اوپن ہو، اور ان کے نام پہ اس کے اندر جو ہے نا انسٹرکشن لکھی ہو۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، بات یہ نہیں ہے ویسے۔ بل لا يخافون الآخرة، کریکس آف دا میٹر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ تمام ان کی باتیں ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طبیعت کو، ان کی فکر کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مطالبات ہیں یہ صرف ایکسکیوزز ہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ بل لا يخافون الآخرة، ان کے اندر کیا ہے؟ آخرت کا خوف نہیں ہے، اور آخرت کا خوف جو ہے وہ چابی ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ بدقسمتی سے اگر مسلمان کے اندر بھی آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو اس کو کوئی اور چیز جو ہے گناہوں سے نہیں بچا سکتی۔ آخرت کا خوف جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر انسان برے کام کرتے وقت جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ فرشتے ان کو ریکارڈ کریں گے، اور قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ تو فرما دیا کہ ان کو کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کلا انہ تذکرہ، ہرگز ایسی بات نہیں۔ انہ تذکرہ ایڈمونیشن ہے، اس کے اندر واعظ و نصیحت ہے، اس کے اندر ریمائنڈر ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جس نے چاہا تو اس نے اس کو یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس سے اس نے عبرت حاصل کر لی۔ فمن شاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چوائس دیتی ہے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول عطا فرمائی، اور انسان اسی کی بنیاد پر جو ہے انسان کا محاسبہ ہوگا۔ وما يذكرون الا ان يشاء اللہ، اور یہ لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، یعنی یہاں انسان کی لمیٹیشن بھی بتا دی ہے کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے، اور نہ ہی انسان جو ہے وہ مطلقاً آزاد ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ انسان کے اوپر پابندیاں بھی ہیں۔ اگر ہر انسان کو آزادی دی جائے کہ وہ جو چاہے کرے تو دنیا میں کوئی نظام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور دنیا میں آلریڈی جو فساد ہے اس فساد کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایک ہمارے ہاں معاشرے کا نظام ہے، قانون کا نظام ہے، اخلاق کا نظام ہے،
हुकूमतों का निज़ाम है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालती हैं कि हमें फुल फ्लेज जो है वो आज़ादी हो। नहीं, इल्ला अन यशा अल्लाह। हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत हो। इसलिए हमें हुक्म क्या दिया गया है कि हम किसी काम करने का ये इज़हार करें कि मैं ये काम करूँगा, तो कहें कि इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा, यानी अल्लाह की मशीयत हुई, मैं आपके पास सुबह फजर की नमाज में मेरी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह। हो सकता है मैं ना उठ सकूं, हो सकता है मौसम खराब हो, कोई और वजह हो जाए, मुझे तकलीफ हो जाए, इल्ला अन यशा अल्लाह। जब आपने इंशा अल्लाह कह दिया तो आप जो है महफूज हो गए हैं, और आप जो है उसके लिए आपका मुआवजा नहीं होगा, क्योंकि आपने अल्लाह की मशीयत के हवाले अपने अंजाम को कर दिया था। हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाह तबारक व तआला जो मशीयत वाला है, उसकी यहाँ दो सिफात जो है वो बयान हुई है। अहलुत तक़वा, कि वो अल्लाह तबारक व तआला इस लायक है कि उससे इंसान तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व तआला से, यानी उससे डर इख्तियार करे और उसका खौफ अपने अंदर रखे। व अहलुल मग़फ़िरा, और अल्लाह तबारक व तआला इस काबिल है कि वो इंसानों की मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों को जो है वो माफ़ करे। तो अ, अल्लाह तबारक व तआला से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएँ हैं, उन दुआओं में एक ये भी था कि आप फरमाते थे, आते नफ्सी तक़वाहा, ए अल्लाह तू मेरे नफ्स को जो है अपना खौफ अता फरमा, क्योंकि अगर नफ्स के अंदर खौफ नहीं होगा तो वो गुनाहों का मुर्तकिब हो सकता है। तो ये आयत नंबर 56 है सूरा अल मुदस्सिर की। अ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज के इस दर्स में हमने जिन आयात का मुताला किया है, अल्लाह ताला हमें उनको समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।